So hello students, welcome to EduTap. Today we are going to discuss the winning strategy to clear NABARD grade A 2023 क्योंकि आपका एग्जाम 16 अक्टूबर को है. So what will be my agenda with this video? देखो, in a simple word I will tell you what you need to actually cover for this examination, then what are the points that you should do to cover this syllabus, and what are the things that you should keep in mind while you are preparing. Then at the end I will tell you actually on the day of examination how you should approach each section, how much time you should denote to each section, how much marks or score you should target in each section, and why it is so. I'll also explain it to you in this video. So this is going to be a complete video till the day of your examination. Okay, so let's move ahead and first of all see what you need to prepare for this exam. So here are various subjects you can see. Please keep in mind, very carefully listen what I'm going to say. For ESI, you need to prepare government scheme, ESI report, ESI current and ESI static from the point of view of phase 1 and phase 2. Okay, this is going to be very important. Then there is ARD. ARD mein what you will have to prepare: government scheme, ARD report, current affairs and ARD static. This also need to be approached from the point of view of phase 1 as well as phase 2. Then there is GA. GA mein you will have to do GA static and GA current. While we are talking about this need to be covered only for phase 1. Then there is non-merit section of English, Quant, reasoning, decision making, computer. This need to be only covered for phase 1. Now why knowing phase 1 and phase 2 is important? Dekho, if you are just starting, let's say you are starting with ARD static and you don't know ki how I should approach this subject. Okay, I know ki what important topics are there, but I don't know how I should approach this. What you will do, either you will study too less, either you will study too much. So whenever you see phase 1 plus phase 2, that means this exam or this subject will also come in your phase 2 examination. You should at least try to go in some depth. अगर आप phase 1 के लिए only reading what is cropping system, तो phase 2 के टाइम पे you will also have to read the type. That is what I mean. बहुत ही simple word में मैं आपको समझा रही हूँ. ओके तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको प्रिपेयर करनी है. नो नीड टू टेक दिस स्क्रीनशॉट, यू विल गेट द PDF ऑफ दिस इन द टेलीग्राम चैनल आफ्टर 24 आवर्स. राइट, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, बट अभी सुनने पे ध्यान दो और कहीं आपका मुझे अटेंशन नहीं चाहिए. Then these are all the things that you will have to prepare. Now let's come take the things one by one. So first of all is your ARD. While we are talking about the ARD, please keep in mind what you need to do and what you need to avoid. देखो, ARD is your static dominated subject. Also note it down. Static means this is the information that is not going to change very soon. Let's say we are talking about vegetative propagation in horticulture plants. कोई नया मेथड आज ही आ जाए एंड दैट विल ऑल्सो बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन इज इम्पॉसिबल. नॉट इम्पॉसिबल, आई वुड से बहुत रेयर टू रेयर केसेस में हो सकता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. राइट, तो इसके बहुत कम चांसेस बनते हैं. सो व्हाट डू आई मीन बाय स्टैटिक? स्टैटिक का मतलब है डेफिनेशन ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. व्हाट इज हॉर्टिकल्चर? दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू विल हैव टू नोटिस व्हाइल यू आर अप्रोचिंग द ARD. एंड ARD आपका अगेन इंपॉर्टेंट है बोथ फॉर फेज 2 का ऑब्जेक्टिव एंड फेज 2 का ऑब्जेक्टिव. सो आपने अप्रोच भी इसको ऐसे करना है कि आंसर राइटिंग में इफ यू गेट द क्वेश्चन लाइक which is already asked, what is social forestry, what are lacunes in social forestry, what are advantages, disadvantages, or if you get the question like technical question जो थोड़े से होते हैं, what is cross breeding, what is different type of cross breeding advantages and disadvantages. तो कभी भी आप इंपॉर्टेंट ARD के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हो, स्पेशली जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से आएंगे आपके, वहां पे यू विल हैव टू बी वेरी अवेयर, वेरी केयरफुल कि आई नीड टू डू दिस चैप्टर और आई नीड टू अंडरस्टैंड एंड रीड इट इन अ सच अ वे कि आई हैव द अंडरस्टैंडिंग. उनमें तो आपने कोई ऐसा नहीं है कि मुझे ठीक है 3 लाइन समझ में आ गई, 2 नहीं आ रही, आई विल मैनेज. ये आपको कभी नहीं करना है व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फेज 1 फेज 2 कंबाइंड सब्जेक्ट्स. ओके, तो ये आपका पहला पॉइंट है. बिकॉज आई नो एवरीबडी स्टार्ट विद ARD स्टैटिक, तो ये आपको ध्यान रखना है. इफ यू आर फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड देन ऑल्सो प्लीज नोट इट डाउन. आपने लिमिटेड रहना है. देन try to write 3 answers in ARD. I am saying in the whole span, let's say you are taking around 14 days to cover all the topics of ARD, all the subjects or all chapters of ARD. इसमें भी try to write at least 3 answers. ये 3 आंसर किन से हो सकते हैं? इंपॉर्टेंट चैप्टर्स.
राइट तो इन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के दीज आर 7 इंपॉर्टेंट चैप्टर, इनमें से आइदर यू कैन गो कि एक ही चैप्टर से 3 आंसर लिख रहे हैं, और यू कैन से कि ओके एनिमल हस्बेंड्री से एक लिख लिया, हॉर्टिकल्चर से एक लिख लिया, फिशरीज से एक लिख लिया. इट टोटली डिपेंड ऑन यू. Okay, then there will be stick with the syllabus, especially if you are somebody who have given the examination last year or last to last year, or if you are from agriculture background. इन दो cases के बच्चों को बहुत selective रहना है. You still don't need to go in too much depth कि okay जो पूछा जा रहा है I have read it once, so what should I do? I should go in more depth. आई शुड रीड द, लेट्स से कि मैं फर्टिलाइजर्स के ईच फर्टिलाइजर के रेट्स याद करने लगा. आई एम गोइंग टू रीड ईच एंड एवरी क्रॉप दैट एग्जिस्ट, उसके साइंटिफिक नेम में लग गया हूँ. दैट वी विल नॉट डू. आप सिलेबस को देखो, सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को करो, देन ट्राई टू डू सम अदर चैप्टर, एंड उसके बाद उसमें से 3 आंसर लिखो एंड उसी को रिवाइज करो. दैट शुड बी योर स्ट्रैटेजी. जितने ज्यादा आप चैप्टर फेज 1 के लिए प्रिपेयर रखोगे, लेसर बर्डन यू विल फेस इन फेज 2, क्योंकि अल्टीमेटली आपने एग्जाम फेज 1 फेज 2 दोनों निकालने हैं, सिर्फ फेज 1 टारगेट नहीं करना है. इफ यू आर ओनली प्लानिंग टू गिव फेज 1, लेट्स से यू आर स्पेशलिस्ट पोस्ट, तो येस यू कैन गो अहेड विद द 7 चैप्टर. इसके बाद ऑल्दो आई वुड से कि तब भी 10 चैप्टर्स तक कर लो, व्हाई टू टेक द रिस्क. बट येस 7 चैप्टर उस केस में एक बार के लिए काम आ जाएंगे. बट इफ यू आर प्लानिंग कि ठीक है मैं इंटरव्यू में जाऊं या इंटरव्यू पास करूं, तो तब भी तुम 7 चैप्टर के साथ सोच रहे हो, तो इट विल बी वेरी 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 डिफिकल्ट, और आई वुड से ठीक है मुश्किल है थोड़ा. ओके अब क्वेश्चन सबसे बड़ा क्या आता है कि ये 7 चैप्टर हैं कौन से. तो लेट्स सी, दीज आर द 7 चैप्टर्स दैट यू विल हैव टू प्रिपेयर. ये आपके इंपॉर्टेंट 7 चैप्टर्स हैं. इन्हीं में से यू विल हैव टू राइट द आंसर ऑल्सो. इन्हीं में से आपके फेज 2 के ऑब्जेक्टिव आएंगे, इन्हीं में से फेज 1 के भी ऑब्जेक्टिव आपके आएंगे. तो दैट इज वाई दिस 7 चैप्टर यू विल हैव टू डू वेरी केयरफुली. कितने क्वेश्चन आते हैं? सो लास्ट ईयर 28 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन अंडर द ARD वर ओनली फ्रॉम दीज 7 चैप्टर्स. तो हमेशा ये लेके चलो कि 22 प्लस आपके मार्क्स जो है वो इन्हीं 7 चैप्टर्स से आ जाएंगे. तो और ये वाला जो नंबर है ना, इसको भी बड़े ध्यान से याद रखना. आई विल टेल यू इन द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट इन द लास्ट स्लाइड. ओके then there will be ESI. so ESI में आपकी learnings क्या है? while you are approaching the ESI, understand जैसे ARD static heavily dominated था, ESI वैसे ही आपका current dominated होता है. ओके तो यहाँ पे current से related question are a lot, तो you will have to practice accordingly. देन आपके ESI में दूसरी चीज जो आपको देखने हैं कि आपने पहले करंट अफेयर ही शुरू करना है. एंड करंट अफेयर में भी क्या करना है? करंट अफेयर में स्कीम्स भी हैं. करंट अफेयर में यू विल have to do the reports, you also have to do current development. तो मैं ESI में करंट में क्या क्या करूं और किसको पहले वेटेज दूं कि ओके इफ आई हैव डन दिस कंपोनेंट देन आई कैन टेक अदर्स लाइटली. तो उस केस में आई वुड से कि प्रायोरिटी अपनी दो स्कीम्स को, बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चन यू विल सी आर आस्क्ड फ्रॉम द स्कीम्स. देन प्रायोरिटी दो रिपोर्ट्स को, देन दैट विल बी द प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द करंट अफेयर. अब यहाँ पे वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग, योर अप्रोच शुड बी कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बोथ फेज 1 एंड फेज 2. क्योंकि यहाँ पे ESI करंट के व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड? द ऑब्जेक्टिव ऑफ NRLM, right? So these kind of question you can get the question like what is the PDS system, explain. So आपको किसी भी स्कीम्स में से ऑब्जेक्टिव, उसके कंपोनेंट एंड की फीचर पूछे जा सकते हैं इन द आंसर राइटिंग. सो मैं आई एम नॉट सेइंग कि व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग हर किसी स्कीम को खोल के उसके हर चीज को रट दो. That I'm not saying, but yes, while you're reading it for the first time, वहाँ पे आपको अवेयर रह के कॉन्शियस रह के पढ़ना है, so that you know कि ठीक है यहाँ पे I need to maintain my focus, यहाँ पे I have to put some effort. Similarly in the report, देखो report भी can be a very good tool to write a very 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 good answer. तो अगर आपने अपने आंसर को स्कोरिंग बनाना है, तो इन दैट केस इफ यू कैन कोट सम रिपोर्ट्स इट विल बी गुड. अब रिपोर्ट्स को कब कोट कर पाओगे? लेट्स से फॉर द होल एग्जामिनेशन यू आर रीडिंग ओनली 3 रिपोर्ट्स. अब उन 3 रिपोर्ट्स में से क्वेश्चन आए तो देन यू विल बी एबल टू राइट, अदरवाइज आप नहीं लिख पाओगे. एंड रिपोर्ट में से ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आर नॉट आस्क्ड. नोबडी इज गोइंग टू आस्क कि व्हाट इज नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट, एक्सप्लेन द चैप्टर्स ऑफ नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट, नो. बट येस, लेट्स से a particular report, we are taking the example of the stats of animal husbandry. So if the question is related to your animal husbandry, let's say they are talking about the branches of animal husbandry, or not animal husbandry ki branches, they are asking you about what is animal husbandry, what is scenario of animal husbandry in India. यहाँ पे यू विल हैव टू कोट दिस रिपोर्ट. आपको इसका डिफरेंट डेटा प्रेजेंट करना पड़ेगा. सो दैट इज वाई हैव सम रिपोर्ट एट द एंड इन योर हैंड कि अगर मुझे
ये पर्टिकुलर चीज कोट करनी है तो मैं ये करूंगा, राइट। अगर आपने लाइफ स्टॉक सेंसस पढ़ रखा है तो सेम क्वेश्चन में यू कैन कोड दैट रिपोर्ट ऑल्सो। अगर आपने डेसीडियल स्टैट्स पढ़ रखे हैं तो देन यू कैन कोड दैट रिपोर्ट ऑल्सो। मतलब देख रहे हो, एक क्वेश्चन के लिए यू नीड 3 रिपोर्ट्स, क्योंकि वो आपके आंसर को बेटर बना देगी। ऑल दो एक रिपोर्ट से काम बन जाता, बट द बेटर सोर्सेज यू हैव इट शोज कि तो आपका आंसर अच्छा है। तो इसीलिए रिपोर्ट को भी जब पढ़ोगे, ऑल दो वहां पे भी देखो आपको पूरी डिटेल हाईलाइट नहीं पढ़नी है, बट कोट आपने डेटा ही करना है। सो दैट इज वाई उस डेटा को ऐसे मत सोचना कि यार कितना पढ़ना पड़ रहा है, आई एम पुटिंग इन एफर्ट, फेज 1 के लिए इतनी तैयारी में कैसे करूंगा। फेज 1 नहीं, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोथ फेज 1 एंड फेज 2। ओके, सिमिलरली फॉर करंट अगेन कैन बी अ वेरी गुड टूल टू राइट गुड आंसर। तो करंट अफेयर को भी आपने ऐसे अप्रोच करना है कि ये फेज 1 एंड फेज 2 दोनों में पूछे जा सकते हैं। व्हाट यू विल हैव टू बेसिकली रीड इन द करंट अफेयर, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो व्हाट एग्जैक्ट न्यूज इज यू विल हैव टू सी। सब्जेक्टिव और आई वुड से आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यू विल हैव टू सी कि करंट अफेयर में विच पार्टीज आर इन्वॉल्व एंड व्हाट दे आर टारगेटिंग। सो ये आपका थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है। ओके, then again in the ESI try to write 3 answers. These can be, although I would suggest कि 2 आंसर try to write from the current and 1 answer should be from the static. Static में से अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो write on the globalization, write on the LPG reforms, ठीक है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से लास्ट ईयर क्वेश्चन आ रखा था। द सेम कैन बी आर अनदर टॉपिक इफ यू वांट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे लिख दो, उस पर भी क्वेश्चन आ रखा था, ऑल्दो इट विल बी हाइब्रिड इन नेचर अ लिटिल। Then my third advice to you will be do not skip the ESI static completely. तो मैम मैं क्या करूं? देखो ESI static when you're doing there are 7 important chapter again in the ESI. उन chapters को तो कर ही लो, उनके अलावा कोशिश करो कि you try to do at least 5 more chapter. 12 तक का स्कोर कि 12 chapters का आपने स्टोर रखा हुआ है, ऐसे एग्जाम में आपने जाना है। इफ यू ओनली कवर 7 चैप्टर्स तो आप काफी सारे, क्योंकि ESI स्टैटिक में ऑलरेडी करंट के आई वुड से कि लास्ट टाइम आए थे 37 क्वेश्चन एंड स्टैटिक के आए थे ओनली 3 क्वेश्चन। तो यहाँ से यू गेट द आइडिया कि कम क्वेश्चन आते हैं, बट नॉनदलेस नाबार्ड कैन ऑलवेज चेंज इट्स ट्रेंड। इट इज नॉट लाइक कि अभी तक करंट के ज्यादा आए थे तो स्टैटिक के नहीं आ रहे हैं, हो सकता है 20 क्वेश्चन आ जाए दिस ईयर, राइट। तो आपने स्टैटिक की प्रिपरेशन में भी ऐसे करना है कि उन 20 में से यू आर एबल टू गेट एटलीस्ट 12-13 राइट। ओके, एंड करंट में आपका अच्छा वेटेज है, करंट में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, सो इजीली आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। अल्टीमेटली आपको तो कट ऑफ चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करोगे। देन क्वेश्चन अगेन यही है कि ये चैप्टर है कौन से, तो ये है ये 7 चैप्टर दैट यू विल हैव टू डू, राइट। सो आई होप यहाँ से यू हैव द क्लैरिटी रिगार्डिंग द ESI एंड ARD which need to be also prepared for both your phase 1 and phase 2. Now coming to your GA. GA is your जनरल अवेयरनेस। देखो जनरल अवेयरनेस व्हेन आई टॉक अबाउट, ये भी स्टैटिक और करंट होती है नेचर में। स्टैटिक इन द सेंस इफ समबडी आस्क यू कि व्हेन वाज द बैटल ऑफ पानीपत हेल्ड, हु फॉट इन दिस बैटल, सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन ये क्या है, GA आएंगे नहीं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू। इफ द क्वेश्चन आर लाइक कि हाउ मेनी वेटलैंड्स आर देयर इन इंडिया, तो ये थोड़ा सा स्टैटिक से रिलेटेड है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक वेटलैंड का नाम दे दिया एंड दे आस्क यू अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दैट कि वेटलैंड स्टार्ट कहाँ से हुए थे, दे आस्क यू अबाउट रामसार साइट, तो वो थोड़ा सा स्टैटिक का पार्ट हो जाएगा। इफ दे आर आस्किंग यू कि अभी कौन सा नया रामसार साइट बन रखी है, तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर करंट, ठीक है। तो यहाँ पे भी GA में यू विल सी जो करंट का वेटेज होता है दैट इज मोर, ऑलराइट। तो यहाँ पे अब क्योंकि GA बहुत वाइड है, आपको कितने करने पड़ेंगे, देखो ट्राई टू डू पहले तो 3 मंथ, क्योंकि 3 मंथ से यू विल सी 60-70% सिलेबस आ जाता है। उसके बाद ओनली इफ यू हैव टाइम देन मूव फॉर 3 more month and try to do latest 6 month of current affair, but only if you have time. अगर टाइम नहीं है GA को देने के लिए तो कोई बात नहीं, 3 मंथ को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। Then there will be the question to magazine approach can be used in the GA part. That means while you are doing the GA, open up your computer, first solve the quiz. पहले आप क्विज सॉल्व करो, then you go read your source. ठीक है, this you can do. This will be very easy also to memorize after doing the quiz also. But if you are somebody who is only relying on quiz, क्योंकि GA थोड़ा सा चांसेस ज़्यादा है इसके, मतलब चांसेस क्या है, ये आता ही phase 1 में है, so that is why this approach will also work in this case, right? Now again I have told you कि करंट का वेटेज ज़्यादा होता है। लास्ट टाइम 20 में से अगेन 17 क्वेश्चन क्या थे आपके, सॉरी करंट डोमिनेटेड थे, और 3 क्वेश्चन क्या थे, ये आपके स्टैटिक डोमिनेटेड थे। Okay, I hope this is very much clear to you. Now coming to the quant reasoning and decision making, the non-merit section. तो देखो quant reasoning इंग्लिश में तो सबसे पहले you will have to focus कि यहाँ पे हर किसी की कोशिश करना QRE में you do
द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक, मोस्ट स्कोरिंग मतलब जैसे लेट्स से क्वांट में यू सी आउट ऑफ 20 8 क्वेश्चन आपके डीआई के हैं, तो वो क्या हो गया, मोस्ट स्कोरिंग है। 20 में से कट ऑफ जाती है आपकी 3 मार्क्स 5 मार्क्स, और आप 8 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट से आ रखे हैं या एक टॉपिक से आ रखे हैं, तो अच्छी चीज है ना ये, राइट, यू प्रैक्टिस इट वेल, आपका हो जाएगा। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से में भी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आ रखे हैं और 2 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ रखे हैं, तो दीज टॉपिक यू विल हैव टू डू। उसके अलावा भी जो छोटे चैप्टर हैं जिनमें से समटाइम क्वेश्चन आर आस्क्ड, समटाइम नॉट, देन समटाइम नॉट, वो भी कोशिश करना यू प्रिपेयर एटलीस्ट 4 टॉपिक लाइक दैट, राइट। सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू कि क्यूआरई के लिए आपकी अप्रोच कैसे होगी। देन प्रैक्टिस द क्वेश्चन ऑन दीज टॉपिक। क्यूआरई में आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चंस को या फिर आई वुड से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जामिनेशन। जो भी टॉपिक आपने सिलेक्ट कर लिए हैं क्यूआरई में, वो टॉपिक आपको करने हैं अच्छे से। देन देर इज इन इंग्लिश गिव एक्स्ट्रा एफर्ट। वाई इट इज सो, क्योंकि इंग्लिश की कट ऑफ इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। तो इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है, ऑल्दो यू माइट फील लाइक कि क्योंकि मैं बोल लेता हूँ, क्योंकि मैं लिख लेता हूँ, आई एम गुड इन इंग्लिश, बट विदाउट टेस्टिंग एनीथिंग or without testing any exam, I would say ki you are, it might be like you are good with English but you are not good in expressing the English that is required for the exam. तो English के लिए अगर maintain करना चाहते हो, you don't want to miss the exam just because of English, then English में start practicing. अगर you don't know the basics, then yes, go for basics of some chapter, then start practicing, but it should not be like every day you are reading one basic and doing one question, that should be avoided. सो आई होप यहाँ पे यू हैव अ कंप्लीट आइडिया रिगार्डिंग द क्यूआरई। अगर कोई डाउट है आपको तो यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। देन कमिंग टू द कंप्यूटर एंड डिसीजन मेकिंग, इसके लिए आई वुड सिंपली से कि एक वीक का टाइम अलग रख लो, कि 1 वीक बिफोर द एग्जामिनेशन, या अगर अभी करना चाहते हो तो, और एंड 1 वीक इज ऑल्सो फॉर समबडी हु इज वेरी स्लो। अगर आप बैठ के अच्छे से टाइम दे के पढ़ रहे हो, लेट्स से यू आर प्लानिंग टू रीड कंप्यूटर ऑन संडे, दे आर डूएबल जस्ट ऑन संडे, यू विल स्टार्ट ऑन संडे, फिनिश ऑन संडे। तो कंप्यूटर एंड डिसीजन मेकिंग ऐसे सब्जेक्ट है। नाउ प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस अगेन। व्हाई, देखो इससे थोड़ा सा जो हमारी मेमोरी प्रॉब्लम है ना, दैट विल गेट रिड्यूस, हमें चीजें याद होने लग जाएंगी। देन देयर इज डू बेसिक प्लस मॉक्स फॉर द पार्ट ऑफ क्यूआरई। आपने बेसिक्स करने हैं और उनके मॉक देने हैं, बट फॉर द कंप्यूटर एंड डिसीजन मेकिंग पार्ट आपने क्या करने हैं, इनको पढ़ना है और उसके बाद थोड़े से हाँ इसको आपने पढ़ना है, उसके बाद यू विल हैव टू सी द केसेस ऑल्सो इन द केस ऑफ डिसीजन मेकिंग। नॉट एवरी टॉपिक, आई एम नॉट सेइंग नॉट एवरी टॉपिक, बट ट्राई टू रीड एटलीस्ट 10 केसेस। उससे थोड़ा सा एग्जाम विल, यू विल गेट फेमिलियराइज विद दिस एग्जाम। ओके, then coming to the important topic of each section, these are all the important topic that you need to cover. इसमें जो red में है और highlighted है और जो yellow boxes में है, these are the most important chapters, right? इनके अलावा whatever you feel, at least 4-5 chapters सब में आप कर सकते हो। ओके, क्वांट में तो देखो वैसे ही बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, यू डोंट हैव मच ऑप्शन, सो यू कैन गो फॉर इट। क्वांट में यू कैन सी, आई वुड से डीआई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा फोकस करो, बाकियों पे, बाकी टॉपिक्स पे आपने तब करना है फॉर द बैकअप, एंड अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो इन दैट केस ऑल्सो यू आर एबल टू क्लियर द कट ऑफ। देन रीजनिंग के लिए सेम है, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल को आपने करना है, बट इसके अलावा यू कैन पिक सम अदर टॉपिक टू, तो 1-2 टॉपिक, 3-4 टॉपिक यू विल हैव टू प्रिपेयर। कंप्यूटर नॉलेज में भी यू कैन सी दे आर इन द बॉक्स एंड फॉर डिसीजन मेकिंग ऑल्सो। तो आई होप यहाँ से यू विल हैव नो मोर कंफ्यूजन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन एग्जाम हाउ यू नीड टू बैलेंस। देखो, while you are going to give examination, you will have to understand, you will be given the merit section, you will be giving the non-merit section. There is no sectional timing, यहाँ कोई sectional timing नहीं है, there is just composite timing of your 120 minute to do 200 question. कट ऑफ लास्ट कितनी गई थी, आउट ऑफ दिस 100 मेरिट सेक्शन कट ऑफ गई थी 41। आपको कितना टारगेट करना चाहिए, ऑलमोस्ट आई वुड से 55 प्लस, यानी 56 तक टारगेट करके रखो, राइट। सो अब इस अकॉर्डिंग में मैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आऊँ, मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन है, ऑब्वियसली जनरली होना भी चाहिए। तो लेट्स डिस्कस दैट। तो देखो सबसे पहले अंडरस्टैंड कि क्या आप टारगेट करोगे स्कोर को। तो ये आपके टोटल मार्क्स हैं, दीज आर द कट ऑफ इन 2021 एंड 2022, राइट। तो क्वांट की कट ऑफ डिक्रीज हो रखी है, रीजनिंग की सेम है, बाकियों की इंक्रीज हो रखी है अंडर नॉन मेरिट सेक्शन। सिमिलरली ईएसआई की कट ऑफ डिक्रीज हो रखी है इन द मेरिट सेक्शन, बट एआरडी और जीए की कट ऑफ थोड़ी सी बड़ी है, ऑल्दो 0.25 बट बड़ी है। तो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब इसके अकॉर्डिंग आपका टारगेट सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर करने के लिए ये होना चाहिए।
But for merit section, the actual target should be for ARD 22 plus, ESI 22 plus, and for GA it should be 10 plus. This should be your target. तो अब टारगेट के अकॉर्डिंग आप टाइम दोगे, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू गिव गेट 22 मार्क्स. वहां पे अगर इफ यू लेट से 22 मार्क्स का क्वेश्चन करने के लिए यू गिव 80 मिनट, तो क्या होगा? द पेपर विल बी लेफ्ट आउट. यू विल नॉट बी एबल टू डू सम क्वेश्चन प्रॉपरली, और यू विल बी एबल टू नॉट गिव इट एट ऑल. ओके, तो अब यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग आपने टाइम मैनेज करके रखना है. सो फॉर टाइम आई विल टेल कि क्वांट में, क्योंकि यू आर टारगेटिंग 8 मार्क्स, 10 मार्क्स का टाइम रख लो, क्योंकि ऑफकोर्स जो आपका डिसीजन मेकिंग है वो, सॉरी नॉट डिसीजन मेकिंग, DI जो है आपका डाटा इंटरप्रिटेशन, दैट टेक्स टाइम. सिमिलरली रीजनिंग के लिए भी आपने 10 मार्क्स रखने हैं, राइट? क्योंकि पजल के क्वेश्चन और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आर नॉट ईजी टू डेल्ट विद. देन इंग्लिश के लिए, क्योंकि वी आर टारगेटिंग 18 मार्क्स. वाई वी आर टारगेटिंग सो? बिकॉज कट ऑफ इज continuously increasing in English. Then there is computer knowledge. So for 10 marks, for 8 marks, you will again give 10 minutes. For decision making, there are 10 questions. You will give 5 questions. Ma'am, is it possible? Yes, it is. Decision making में you don't have to solve something. You review. You will read the question. Either you will take the correct answer, or you will correct the incorrect answer, or you will say कि okay, I want to review it. उसके अलावा बाकी चीजें सेम रहेंगी. देन डिसीजन मेकिंग में क्या होगा? बिकॉज 3 मार्क्स यू आर टारगेटिंग, सो 5 मिनट आई हैव गिवन यू. ऑल्दो ये थोड़ा सा लीनियंट है, बट इससे आपको कम टाइम लगना चाहिए. देन ARD के लिए 22 प्लस मार्क्स यू आर प्लानिंग, तो 25 तक आपका टारगेट होना चाहिए, या 25 मिनट का आपका आपने टाइम देना है. देन सिमिलरली फॉर द ESI 25 मिनट यू विल गिव, बिकॉज यहाँ पे भी हमारा टारगेट क्या है? 22 प्लस. देन फॉर GA इट विल बी 10 मार्क्स, बिकॉज आपने कितने का टारगेट कर रहे हो? 10 मार्क्स का. So this is how it should be. This is how my point of view is how you should give the paper. Please do note it down, or you will get the PDF also, and cumulatively सारे का time आ जाएगा 120 minute. Okay. So this is it for the video. I hope यहाँ से आपको सारे answers मिल गए हैं that you were looking for. You are able to easily see कि okay, how much I need to score, how much time I need to devote in the exam and preparation for that subject. Okay, so that will be it. Thank you so much. But if you have any other doubt related to NABARD, so we have this guidebook where you will get decoded syllabus, where you will get solved PYQs, you will get the sources and the strategy to crack those, clear those sources. And to get this guidebook for free, you will just have to go in the description box and check out the link. With now beside this, if you want help from our side, क्योंकि अब टाइम तो है नहीं, तो अगर आपको कोई एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स है, सो फॉर दैट वी हैव 2 कोर्सेज, दैट इज नाबार्ड लाइव क्रैश कोर्स एंड टेस्ट सीरीज. सो लाइव क्रैश कोर्स में यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस, जो कि कल से स्टार्ट हो चुकी हैं. येस्टरडे इट वाज ओरिएंटेशन क्लास, आज से आपकी एक्चुअल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी. तो ट्राई टू एनरोल ऑन टाइम सो दैट यू कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ दिस क्लासेस. देन आपको शॉर्ट नोट अवेलेबल होंगे फॉर रिविजन, ऑल्सो द माइंड मैप्स. देन आपके करंट अफेयर भी आपको अवेलेबल होंगे, सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर बोथ फेज 1 एंड फेज 2. एंड सिमिलरली यू विल ऑल्सो गेट टेस्ट सीरीज इन दिस क्रैश कोर्स. अब टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या मिलने वाला है? इफ यू बाय द टेस्ट सीरीज यू विल गेट चैप्टर वाइज टेस्ट in this particular course. Then you will also get selection test. Then you will get the descriptive test that will be evaluated through our evaluator, which will tell you what you have done correct this time and how it can be improved. Then there will be current affair test. Then lastly you will get full length test. Full length test means you will get for phase 1 200 question that will give you environment कि okay मेरे को इतने मार्क्स लाने के लिए इतने क्वेश्चन करने हैं. I have this kind of pressure in the when I am in as a new place, when I am a new employee. राइट, तो उसको करने के लिए आपको क्या करना है? फुल लेंथ टेस्ट से अच्छे से आपने प्रैक्टिस करनी है. इफ यू वांट टू चेक दीज, यू कैन गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक आउट द लिंक, एंड you will get all the details, be it your price, be it how much off it there is, and you will also get attractive offer on these courses. So that will be it for the video. If you are new here, do remember to subscribe to our YouTube channel, and if you want the PDF of this session or any other content session that we are running at 2 PM शामली मैम के साथ, and evening में आपको 6 PM में classes मिल जाएंगी नॉन मेरिट सेक्शन की एंड करंट अफेयर्स की, राइट? तो उसके कंटेंट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे. So thank you so much. If you have any other query, do let us know at hello@edutab.co.in, or you can also call us, or you can also check our website.